you from? I'm Bhawanipur College. Okay. So you have opted for both the taxation subjects, right? Direct taxation and public taxation. Yes, ma'am. Okay. So today we are starting. I'll just discuss syllabus before I start. You have got the hard copy of the book? No, not the hard copy, ma'am, but the PDF file I have it. You collect your hard copy, no? It is free of cost, I guess. Yes, ma'am. I will collect. I am not there in Kolkata right now. I am in Surat at my home. Surat. Yes, ma'am. Okay. I am from Surat as well. You're from Surat. I never knew. I'm a Gujarati as well. Are you a Gujarati? No, I am not Gujarati, but I was raised here in Surat. Okay. I just came back from Rajasthan though. Like 2 days back, I came from Rajasthan. I went on Panchami. I stayed there for 10 years, 10 days, and then the whole trip ended. Okay, so let's start with public finance and taxation. We have total 10 units. Unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total 10 units. I'll just discuss all of them and then discuss the part that we will deal today. Yes, ma'am. So, who's texting so much? Okay. So, origin and development of public finance. Each chapter consists of the mark divisions has been mentioned here. I'll let you know when I discuss the chapter name and detail. So, first chapter is origin and development of public finance, which is of 8 marks. Okay. Here the questions have been mentioned, but let's focus here. Yeah. So, origin and development of public finance consisting of 8 marks. Chapter number 2 is very, very important. As you can see that it is considering of the highest marks possible, which is 12 marks. Yes, Taxation and government revenue. Chapter 3 is a little less, whereas compared to others, government expenditure considering of 4 marks. Impact of taxation and public expenditure consisting of 8 marks. Public debt, again important, 8 marks. Development of federal finance in India, 8 marks. Central finances, state finances, fiscal reforms, all 8 marks. And the issue of public debt is also 8 marks. So maximum of the chapters are of 8 marks. Only here there has been little twitching. So 4 plus 2 is 6. In that case, only these 2 chapters, which is unit 2 and 3, are bifurcated in the ratio 12:4. Okay, otherwise all the chapters that you can see here is of 8 marks. Okay, yes, ma'am. all the chapters are of 8 marks. Only chapter 2 consisting of 12 and 3 is of 4. Okay, Yes, so let's discuss the syllabus in detail and just zoom a little bit. Yeah. So origin and development of public finance has got 2 sectors. First is where we'll discuss the meaning of public finance. Then the rationale of state intervention. Why should the state intervene or why not? When should the state intervene? Market failure, externalities, public goods, public finance, private finance, principle of maximum social advantage. Okay, as yes. it is, we have 2 subjects, which is public finance and direct tax. So I'll cover them both equally. Like I'll just tell you how. Takes little time. Okay. So day 1 we'll do public finance. Okay. Day 2 we'll do direct tax. That way we'll complete the syllabus faster. Okay. Okay, ma'am. Yeah, Suppose today is day 1. yes, ma'am. Day 1. I don't know which days will we have our classes. Expectedly, we'll have on MWF, Monday, Wednesday, Friday, or TTS, Tuesday, Thursday, and Saturday. I will have a word with you people and I'll just make out time, which one will be feasible. I'll be more comfortable as it is. I have more classes on MWF, and that is Monday, Wednesday, Friday. If I get on TTS, which is Tuesday, Thursday, and Saturday, it will be easier for me. Let's see which is feasible enough. And your college timings are Ma'am, evening. I have evening college. Me and others, both of us. Okay, both of you are from evening, so no issues. In the morning and afternoon, you can do your classes. Yes, ma'am. Totally. Okay, so in that case, day 1 we'll do public finance.
whereas day 2 will do direct tax. Okay. So in that way, because 10 chapters here, 10 chapters here. So in that case, we need a lot of time to complete the whole syllabus. Hai na? So Yes. we'll do it, we'll juggle it, so we'll complete it faster. Okay, and as it is, you are doing the rest 2 subjects with Bhalotia sir, I guess. Rest of the subjects I have not opted from. Okay, this. from here. Okay, Yeah. okay. Okay, no issues. But you need to focus on those subjects as well, okay? Yes. And why taxation? I just wanted to know why taxation. Very few people come into taxation. Just curious. I am pretty sure about my side. I unfortunately did not score much in semester 4, but the subject was seemed to be interesting enough rather than going for accountancy and other two. Okay. So you're not That's comfortable with accounts, I guess. I'm not that much comfortable because I am from science background, so that Okay, okay, okay. Which college or which school you were in? Saint Xavier's. So Okay, okay. I am teaching in St. Xavier's College. uh, in Kolkata, Yes, Kolkata. I Yeah. never. And I'm doing my PhD as well. So, but not in taxation. I'm doing my PhD in finance. Okay. But it is related, more or less it is related. All the subjects are related. If you're into finance, one thing you must remember, a science person can go into any background he wants. Just like that, a finance person can go into any background they want. Because we are taught everything in detail. So in that case, our pro forma is much more stronger. But taxation are much more focused in tax part, and I hope you will be doing something about tax in the later life. You I'm not haven't thought. sure yet, but yeah, let's. Okay, okay. You want to do your masters? Yeah, I'm thinking about doing master MBA after this. Okay. MBA in what? Uh, MBA in finance itself, like Okay, okay, okay. Get it. From what? From where? In Kolkata. no, I'll give MST CET and all other entrance exam, and let's see what will be the results. Okay, where will you get? Okay. Yeah, I hope you're preparing from now. Yeah, I'm on it. Because there's not much time, after you complete this, semester 5 will go in the blush of an eye, and semester 6 will come, and then semester 6 you don't have any pressure, like zero pressure, absolutely. You will have only 2 papers. Mhm. Yes. So rest all our projects and all that nonsense. So you'll have ample amount of time to prepare for your entrance. But you should start from now. Okay. Yeah, So yeah. let's begin. Let's begin. Just put it in center. Yeah. So this chapter consisting of 8 marks, where we'll discuss the meaning, the rationale of state intervention, and market failure, externalities, public goods, public finance, private finance, principle of maximum social advantage. Now let's start with the first topic. What is public finance? Public finance refers to the study of the government's revenue. Whose revenue? Government's revenue. Let's underline the keywords. The government's revenue and their expenditures. Okay. Yes. Public finance deals with what? Government's revenue and government's expenditure. Like especially you would know that this during Durga Puja in Kolkata. Were you there in Kolkata during Durga Yeah, Puja? I was there last year. I enjoyed the whole puja, but this year, Okay, this unfortunately, year in Surat. yeah. Yeah. So I was also in Rajasthan. I couldn't enjoy this year's puja at all here. But during Durga Puja, what happens we know in Kolkata that the police people they allow 2-3 people sitting on the vehicle, that too without helmet. Yes, Okay, during Durga Puja it is allowed. They say that it is allowed. I don't know why. Because Durga Puja means what? If Ma Durga is coming, you will not get any accidents. How funny this seems that people say that during puja a helmet is not required, but it is required for your safety. But in that case, I'll just tell you, normally if you don't wear helmet, they give you 1,000 rupees case, I guess, yes. right? And previously they used to give you a challan, but now no challan. All the bills are auto generated to your this number, your vehicle number.
Yes, Okay, ma'am. and it gets allotted, and if you don't pay the amount within 3 months, then your this case will go from that app, and it will directly you'll have to go to the court and settle the matter. And if you're going to the court, there's an additional charge of the advocate. Okay, and if Yes. you don't at all pay, I don't remember if you remember. I don't know if you remember or not. 2, 3 years or 5 years back, you were much younger at that time, I guess. So what happened? They said that people who have pending cases, okay, they will Mhm. get 40%, 50% off. And then many friends and relatives of mine, what they do, they have a habit of writing down on what date, कौन से दिन में उन्होंने गाड़ी निकाला था और कौन सा रूट उन्होंने लिया था, ये लिख के रखते हैं कितना किलोमीटर गाड़ी चला. बट ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं जितना बार गाड़ी निकालूं उतना बार लिखना पड़ेगा. तो ये तो टास्क हो जाएगा, गाड़ी निकालने में फिर डर लगेगा कि क्या जरूरत, फिर लिखना पड़ जाएगा. Yes, तो ma'am. वो लोग लिख के रखते हैं. तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने केस जितना आया था ना, उन्होंने केस का पूरा प्रिंट आउट निकाला करके, उन्होंने पूरा कॉपी से मिलाने के बाद देखा कि 70% दिन में जब गाड़ी घर के अंदर था तब भी केस मिला है. Oh, ओवर स्पीडिंग का हो गया या कुछ ना कुछ फलाना ढमकाना करके उनको केस दिया है. और करके क्या बोल रहे हैं कि 80% ऑफ है, अभी आप पे कर दो, है ना. तो वो तो yes, मजाक ma'am. हो गया. तो ये क्या गवर्नमेंट के हिसाब से, अब ये सब सोच, सब कहानी भूल जाओ. अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि गवर्नमेंट के हिसाब से क्या हुआ, रेवेन्यू हुआ, Yes, है ma'am. ना. आप अगर नहीं पे कर रहे हो तो आपका व्हीकल सीज हो जाएगा और फिर गाड़ी आप चला नहीं पाओगे. और Uh-huh. गाड़ी का दाम काफी ज्यादा है इस केस से, तो Yes, ऑब्वियसली हम लोग क्या करेगा, हम लोग पे कर देगा. yes, बट ma'am. इन दैट केस ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप कंटिन्यूसली इतना इतना केस मिलता रहे. मेरे एक Mhm. रिलेटिव ने गाड़ी बेच दी लास्ट में, उन्होंने फेड अप हो गया कि मैं जब घर में गाड़ी रख रहा हूँ तभी भी केस, जब बाहर जा रहा हूँ तभी भी केस. ना ओवर, वो तो एकदम 10, 20, 30 पे चलाते हैं गाड़ी. मतलब उनका बहुत कम मैं देखती हूँ, उनके साथ जाने से लगता है ना कि मेरे साथ हाथी, मतलब कोई भी मतलब चल के भी चलेगा ना तो वो फास्ट चल जाएगा. तो उन्होंने फेड अप गाड़ी बेच दी. बट ये क्या हुआ, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेवेन्यू जनरेट का ऑप्शन हो गया कि आप अगर केस कर रहे हो या जो भी कर रहे हो तो इसका पैसा अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मिल रहा है ना. अब मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ गवर्नमेंट के रेवेन्यू का. अलग अलग तरीके होते हैं गवर्नमेंट के उल्लू बनाने के कस्टमर्स को. मेरे पास अभी एक बैंक आया था रिसेंटली, डीबीएस करके. तो आई हैव ऑलरेडी 8 क्रेडिट कार्ड्स. तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करा कि ये है वो है, आप प्लीज कर लो करके, मेरा कुछ टारगेट है ये वो. तो मैंने बोला ठीक है, तुम आधा घंटा से बक बक करे, कर दो करके. करने के बाद ना, मुझे पता नहीं था हर एक क्रेडिट कार्ड का एक डेट होता है जिसपे मतलब वो अमाउंट ऑटोमेटिकली ईसीएस हो जाता है. बट इस क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे पता नहीं था कि ऐसा तो Uh-huh. होता नहीं है कि क्रेडिट कार्ड अपने आप पैसा नहीं काटेगा. Uh, अब मुझे महीने 1.5 महीने बाद मैं जब ऐप खोलने के बाद मैं चेक कर रही हूँ, और इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि हम लोग ऐप खोल करके चेक करते रहे कब मेरा पैसा कटेगा, कब मुझे पे करना पड़ेगा. तो मैंने yes. जब ऐप खोला, खोलने के बाद मैंने देखा कि वहां पे एक लेट पेमेंट फी करके पैसा काट के रखे हैं. तब मेरा थोड़ा सा मतलब दिमाग खराब हो गया कि क्यों, मेरे को पता नहीं है आपने कब पैसा मांगा मुझसे, ड्यू डेट कब है, साइकिल कब खत्म हो रहा है, Uh-huh. आपने ईसीएस क्यों नहीं किया. अब जो किया उसने नहीं किया, फिर कंपनी के पास नहीं है, बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज मेरे दिमाग में तब आ रहे थे. तो मैंने एक मेल करके रख दिया क्योंकि उसके बाद ही मेरा ट्रिप था. तो मैंने फिर भी ईमेल करने के बाद सोचा कि फोन करते हैं. करने के बाद मैंने उनको डायरेक्टली बोला कि देखो, मेरे पास 1, 2 कंपनी के क्रेडिट कार्ड नहीं है, मैं बहुत सारे कंपनी के क्रेडिट कार्ड यूज करती हूँ और अभी 1, 2 साल से यूज नहीं कर रही हूँ, काफी सालों से यूज कर रही हूँ क्रेडिट Uh-huh. कार्ड. तो इन दैट केस आप कस्टमर्स को उल्लू बनाना बंद कीजिए. आपने 500 समथिंग तो काटा ही है लेट पेमेंट फी, उसके ऊपर आपने 99 रुपीज जीएसटी काट दिया है, चार्ज किया है. मेरे को 500 रुपए खला नहीं, जितना वो 100 रुपए जीएसटी खल गया. Mhm. तो मैं लेट पेमेंट दूं जो मेरे को पता भी नहीं है कि मेरे को लेट पेमेंट हुआ है, मेरे को नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, ऊपर से आप 100 रुपए जीएसटी भी काट रहे हो उसके ऊपर. मतलब लेट पेमेंट के ऊपर भी आप जीएसटी नहीं छोड़ रहे हो, मतलब गवर्नमेंट का तो इनकम मतलब चारों हाथों से हो रहा है. I want to say And this is the thing. ये तो है. और
ऐसे ही फिर वो क्रिप्टो करेंसी में भी प्रॉफिट हाँ मार्जिन क्रिप्टो। में। क्रिप्टो में भी अभी तो मतलब महीने पहले बहुत ही गंदा सा क्रैश हुआ था, तो हाँ मेरे हाँ रिलेटिव्स कुछ इन्वेस्ट किए थे, तो उनका तो अभी बहुत ही हालत खराब है। तो जैसा हो रहा है, मतलब अभी भी, मतलब 8-9 महीने पहले भी एक बार क्रैश किया था। सर्च होता है तो फटाफट सर्च हो जाता है, हाँ और हाँ जब हाँ, क्रैश करता है तो इतना मतलब एकदम बहुत हालत ज्यादा। खराब हो जाता है। हाँ उसके बाद ये हो गया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू करने का सिस्टम समझ में आ गया। अब एक्सपेंडिचर्स। अब आप बोलोगे कि मैम हम लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तो हम लोग तो पूरा साल का, या फिर मैंने अभी रिसेंटली एक क्लासिक 350 मार्च ग्रे खरीदा है। तो मेरा बहुत मन था एक बुलेट लेने का। तो मैंने एकदम क्लासिक बुलेट तो था नहीं इन लोग के पास, तो मैंने मार्च ग्रे लिया है, जो एकदम ही ऑड कलर, मतलब मिलेगा नहीं आपको ऑन रोड वो कलर। हाँ 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 तो उसका मैंने जब खरीदा, नवरात्रि का पहला दिन मैंने खरीदा था वो गाड़ी। तो उसमें मेरे को बोला कि साल भर का आपको, मतलब पूरा जो है ना लाइफ टाइम टैक्स पेमेंट किया हुआ है ये वो हाँ हाँ करके। बट लाइफ टाइम टैक्स तो बोलने के लिए है, अब आपको टोल टैक्स तो देना ही पड़ेगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, मैं वो। अभी रिसेंटली राजस्थान से होके आई, यहाँ पे टोल कितना आपको मैक्सिमम देना पड़ता है कोलकाता में? 70-80 हो गया, 50-40-20 ऐसा देना पड़ता है। राजस्थान में टोल में मैंने 550 भी दिया है। मेरा गाड़ी मैंने खुद का गाड़ी ड्राइव करके मैं चला रही थी। हाँ हाँ टोल मेरा, पेट्रोल का जितना खर्चा नहीं हुआ, मेरा टोल का 3 टाइम्स हो गया है, सब टोल मिला के। और कुछ दूर दूर पे ही टोल, कुछ मतलब आधा आधा 1.5 किलोमीटर या 5.5 किलोमीटर चला टोल आ गया, फिर 2-3 किलोमीटर चला टोल आ गया। मतलब इतना पास पास टोल रखा है, और सारा मेरा मतलब 7 से 8 हजार टोल आया मेरा अप एंड डाउन का। तो मेरे को फिर लगा कि मैं फ्लाइट ले लेती, एकदम उदयपुर टू जयपुर, जयपुर टू यही करती तो बेटर होता मेरे लिए, मेरे को मतलब हाँ एक्सपीरियंस था कि अच्छा ड्राइव करके गए। बट ये एकदम बकवास सिस्टम है कि आप इतना 2-2 किलोमीटर के बाद आप एक टोल डाल लोगे। ये भी हाँ तो एक मैम, आदमी रेवेन्यू जनरेशन ही हो गया, फेड अप हो है जाता है। ना। यस मैम। इतना बट टोल इतना क्या जरूरत हमको आने का फिर यहाँ पे। फिर मतलब ये फेड अप सा हो गया, बट ठीक है चलो, जो हुआ हुआ, अब एंजॉय तो किया, छोड़ो। अब आ रहे एक्सपेंडिचर के ऊपर। अब जो ये पैसा ले रहे हो आप टोल के नाम पे, या जो भी करके आप ले रहे हो, तो अगर रास्ते में आप देखो कि हाँ, लेकिन वहां ये बोलना था कि वहां के रास्ते बहुत स्मूथ थे, गाड़ी चला के बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आप कोलकाता में जो 50 रुपए 40 रुपए जो पे कर रहे हो, उसके बाद आप रोड का हालत देखो। हाँ हाँ, वो तो है। टायर का हालत खराब। आपको मैक्सिमम 2 साल टायर चल जाएगा, उसके बाद आपको टायर चेंज करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। तो ये प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है। तो टायर चेंज करना मतलब ऑलमोस्ट 7,000 टोल इक्वल हो जाता है यस है मैम। ना? लेकिन तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, जो रेवेन्यू आया उसके पास वो बहुत कम खर्चा कर रहे हैं कोलकाता में। बट रिलेटिवली राजस्थान के रास्ते बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा मेंटेन किया है। तो ये पब्लिक फाइनेंस जो हम लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, उसी के पैसे से वो एक्सपेंडिचर कर रही है। ठीक है। तो द यस मैम। गवर्नमेंट हैज वेरियस सोर्सेस टू जनरेट रेवेन्यू। और ना ही बस ये मैंने कहा ना, अभी पुलिस वाले का भी एक सोर्स हो गया, या फिर आप जो टोल टैक्स बोल रहे हो उसका भी एक सोर्स हो गया, या फिर जो मैंने और एक एक्सपेंडिचर और एक एग्जांपल दिया आपका क्रेडिट कार्ड का, ऊपर जो लेट पेमेंट है, लेट पेमेंट के ऊपर भी उन्होंने 100 रुपए जीएसटी लगा हाँ दिया। हाँ हाँ। तो ये सारे जो खर्चे उन्होंने एड अप कर दिए, तो सारे रिसोर्सेज बन गए उनके इनकम जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इट हैज मेनली 3 फंक्शंस, ये पैसे का 3 यूज होता है यहाँ पे बोला गया, है तो बहुत ज्यादा ही। और एक उसमें से एक ये भी होना चाहिए कि सब मिनिस्टर्स के घर भी बन रहे हैं उस पैसे से। सो मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेवेन्यू जनरेटेड अमंग सिटीजन्स, जो कि मैंने आज तक कभी देखा देखा तो नहीं है, और ना ही शायद होने वाला है आगे कि वो पैसा हम लोग को मिले। हाँ, अब आप बोलोगे कि जो ममता दीदी अभी कर रही है 500 रुपए करके लक्ष्मी भंडार, या फिर जो 1,000 रुपए करके ओल्ड एज पीपल को देना, ये वो, तो ये मुझे लगता है ये सब बहुत ही एज इट इज योर फ्रॉम अ टैक्स, मतलब आप टैक्स पढ़ोगे तो आपको ये सब क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि अगर हम लोग का पैसा हम ही लोग को रिटर्न करे। आप सोचो, जिससे आप 500 रुपए ले रहे हो लक्ष्मी भंडार या जो बोल के दे रहे हो आप, हाँ हाँ तो वो लक्ष्मी पढ़ाई करते वक्त जो फीस पेमेंट कर रही है, उसमें भी वो टैक्स पे कर रही है। हाँ मैम, ये तो है। जो बुक खरीद रही है, वो बुक में भी जो, ऐसे मैंने देखा है कि गवर्नमेंट का जो फ्री बुक आता है, वो फ्री बुक में भी आप पैसा में बेच रहे हो उसको। तो उसमें जो लक्ष्मी भंडार से आप सपोज 5,000 लूट रहे हो, आप 500 रुपए दे रहे हो।
तो इसमें क्या ही फायदा हो गया, है सही। ना। तो यस। अल्टीमेटली आप कान इधर से नहीं पकड़ के, आप घुमा के पकड़ रहे हो, ले तो आप हम ही से रहे हो, हम ही का पैसा हम ही को दे रहे हो। हमें को So यस। public finance consists of various components like collection of tax, budget, debt, मतलब public debt on the nation. So major source of government income is tax collection, which is used majorly for purposes like building roads, water facilities. आप देखना जब भी इलेक्शन बहुत सामने आ जाती है ना, तब रोड वोड बनना चालू हो जाता है ना। अब रोड यस भी मैम। कैसे हाँ बनते हैं देखना, आप रोड में थोड़ा सा कहीं से टूट फूट गया है ना, तो उतना ही बस ठीक हो जाएगा, बाकी पूरा रोड में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ हाँ बाकी पूरा रोड पुराना लगेगा और बीच में एक पैच वर्क हो गया है। हाँ जैसे हाँ। मेकअप, लड़की लोग मेकअप लगाती है ना, कंसीलर वंसीलर लगाती है, तो जहाँ गड्ढे गड्ढे होते हैं ढकने के लिए तो आई गेस वो मेकअप का ही कॉन्सेप्ट है, लगाते हैं थोड़ा सा ढक दो, अभी जितना मतलब जितना दिन चले उतना दिन चला दो, उसके बाद फिर उठ जाएगा, फिर देखा जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, द गवर्नमेंट ऑफन क्रिएट्स अ डेफिसिट बजट फॉर एक्सपेंडिचर्स on different projects, and when expenditure exceeds the revenue, this budget is called a deficit budget. अब मैं और एक चीज बताती हूँ। अ, अभी जो मैंने अभी उदयपुर गया, ये सब अलग अलग जगह मैं गई थी, तो यहाँ पे बहुत सारे पैलेसेस है। तो कुछ पैलेसेस में थोड़ा रेट हाई है, हाई मतलब काफी है, थोड़ा नहीं। काफी है। तो कुछ कुछ जैसे कि उदयपुर में सिटी पैलेस जब जाओगे ना, वहां पे अब 4,500-5,000 का टिकट आ रहा है। हम्म। समझ रहे हो, 4,500-5,000 का टिकट। तो थैंक गॉड मेरे पास स्टूडेंट आईडी था, मेरा पीएचडी स्टूडेंट आईडी। तो हाँ मैंने बोला मैं रिसर्च करने आई हूँ, करने के लिए मुझे 1,000 पे करना पड़ा। सो आई गॉट फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 3,500। बट अगर मेरे साथ ऐसा कोई होता जिसके पास आईडी नहीं होता, तो उसको तो 4,500 देना पड़ देना रहा है ना। पड़ता है। यस बट मैम। दैट इज नॉट अ गवर्नमेंट इनकम, डोंट बी मिस्टेकन कि वो गवर्नमेंट का इनकम है। वो वहां के जो अभी प्रेजेंट राजा हैं, जिनका शायद उम्र 16 या 17 साल होगी, उस राजा का डिमांड है कि आप यहाँ पे मेरा घर देखने आओगे तो आपको 4,500 रुपये पे करना पड़ेगा। बहुत। अगर आप पर पर्सन से आप 4,500 ले रहे हो, दिन में मोर देन 10, मतलब 10,000, चलो 1,000 2,000 विजिटर्स भी हो जाते हैं, तो आप कैलकुलेशन कर लो कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और मेंटेन करने में कितना ही लगता होगा। हाँ मैम। खतरनाक इनकम सिस्टम बना के रखा है इन्होंने, है ये। ना। हाँ हाँ। तो यहाँ से ऑब्वियसली अभी गवर्नमेंट बोलेगा चुपचाप करके कि हाँ आप गवर्नमेंट वेबसाइट, मतलब गवर्नमेंट हेरिटेज इसको डिक्लेयर कर चुका है और आप इसको दिखा के इतना पैसा ले रहे हो, तो गवर्नमेंट चुपचाप तो नहीं बैठेगा। हम्म। इसमें गवर्नमेंट का भी पार्ट है, गवर्नमेंट को भी कुछ पे करना पड़ रहा है उन लोगों को, क्योंकि उनकी जो माताश्री हैं, जो उदयपुर के राजा हैं करेंटली, उनके जो माताश्री हैं वो हमारी लोकसभा में बीजेपी की कुछ सीट हाँ होल्डर हाँ है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो वहां से मतलब समझ रहे हो आप, महाराणा प्रताप का घर, महाराणा प्रताप कब के चले गए, हाँ 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 ठीक है। हाँ। यस उनके मैम। इतने पूर्व पुरुष बैठ के खा रहे हैं और अभी गवर्नमेंट को भी खिला रहे हैं, हम्म। है ना। तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, इससे भी खतरनाक पॉलिटिक्स होती है, हम लोग के आंखों में बस नहीं आती, हाँ हाँ। है ना। यस तो मैम। वहां पे और भी चीजें थी, जैसे कि वहां पे मतलब देखो ऑब्वियसली हम लोग अगर बाहर से कहीं जाते हैं तो हम लोग को लगता है ना कुछ खरीद के ले जाए। तो इन दैट केस हम लोग किसी के लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट खरीदते हैं, तो वहाँ जो गाइड होती हैं नॉर्मल टाइम पे ना, जब सीजन नहीं होता है तो वो लोग 100-200 में भी गाइड का काम करते हैं, और जब सीजन होता है ना तो उन्होंने 1,500 या 2,000 भी लेते हैं वो, ठीक हाँ। है। तो यस ये मैम। तो अकॉर्डिंग टू पीपल वो डिसाइड करते हैं, उनका भी बिजनेस है, उनको भी पेड भरना चाहिए, जिसको जैसे भरना है भरो। हम्म। सर्विस पे कर रहे हैं तो उनका अभी खुद का है, जैसे रखेंगे वो। लेकिन वो अगर किसी शॉप पे आपको लेके जाए, तो वहां से आप कुछ खरीद रहे हो, है ना, तो यस। वहां पे शायद उस सामान का दाम 200 रुपए है, लेकिन आपको वो 2,500 में बेचेगा। बेचने के बाद जो आपका टैक्सी ड्राइवर है उसको कुछ मिलेगा, जो आपका गाइड है वो उसको कुछ मिलेगा, जो आपका पूरा ट्रिप प्लान किया है उसको कुछ मिलेगा, दुकान वाले का बचेगा। समझ रहे हो, यस आपके मैम। पैसे से वो लोग 4 आदमी खा रहे हैं, हाँ हाँ। है ये ना। तो होता ही तो है। ये तो एक छोटा सा मैंने पॉलिटिक्स बताया, जो हाँ हाँ। बड़ी बड़ी लेवल पे अभी गवर्नमेंट्स में हो रही है ना। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, और यही सब्जेक्ट जो है आपको पब्लिक फाइनेंस या फिर जो टैक्सेशन आप जब करोगे, आपको डिटेल में पता चलेगा कि कितनी गंदी पॉलिटिक्स होती है और कितना परसेंटेज टैक्स के नाम पे लोग काट के और किसको उल्लू बनाते हैं।
है ना। तो आपने बहुत सही सब्जेक्ट चूज किया है, गवर्नमेंट के रियलिटी को जानोगे आप। तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ऑफन क्रिएट्स अ डेफिसिट, कभी कभी बोलते हैं कि पैसा नहीं है ना। यस जो मैम। पैसा शायद है कि नहीं है पता नहीं है, बट पैसा अभी दिखा रहे हैं कि नहीं है, पेन एंड पेपर में नहीं है पैसा। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में खर्चा हो गया, कुछ ना कुछ में खर्चा हो गया। सो एक्सपेंडिचर एक्सीड्स, जब हम लोग को पता है कि हम लोग का जो इनकम से ज्यादा खर्च हो जाते हैं, इनकम से ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, तो बजट शॉर्ट पड़ जाता है। यस मैम। उसको हम लोग डेफिसिट बजट भी कहते हैं। द गवर्नमेंट बोरोज मनी टू इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन, तब गवर्नमेंट क्या करता है, जो है टैक्स कलेक्शन बढ़ा देता है। ये अभी से नहीं, ये मतलब बहुत युगों से चलती आ रही है। ऐसा ही होता है, दुआब सिस्टम, टैक्सेशन ऑफ दुआब। अब अगर अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बता देती हूँ। तो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब गवर्नमेंट के पास या राजा के पास पैसे खत्म हो जाते थे, या फिर खाना या कुछ में शॉर्टेज होता था, तो विलेजर्स से वो लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगान पे करने बोलते थे, ताकि वो अपना घर भर पाए, है ना। यस। तो ये वाला सिस्टम अभी भी चालू है, जब भी देखना गवर्नमेंट के पास पैसा वैसा थोड़ी कमी होती है, ये वो करके वो लोग फलाना ढिमकाना लगा देंगे, लगाने के बाद ये करो वो करो करके पैसा ठीक वो लोग अपना जुगाड़ कर लेते हैं। सो हाँ डेवलपमेंट ऑफ एन एंटर, अब सोचो आप एक एक आदमी 10-10 रुपए देगा, 10-10 रुपए देगा भी, तो कितना आदमी है और कितना पॉपुलेशन और कितना पैसा हो जाएगा। हाँ मैम, ये तो है। तो डेवलपमेंट ऑफ एन एंटायर नेशन इज डिपेंडेंट ऑन द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अगर आपका जो टीम लीडर है, जो पब्लिक फाइनेंस का जो लीडर है, जो पूरा चीज को डील कर रहा है, उसमें अगर कैपेबिलिटी नहीं होगी, उसको अगर समझ नहीं होगी करेक्टली, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आपका जो राजा है, मतलब आपको जो डील कर रहा है, जो जो लीडर है, उसका दिमाग साफ है, उसका सोच साफ है, तो काम भी बहुत अच्छा से आगे बढ़ेगा। नाउ मूविंग यस टू प्राइवेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस समझ में आ गया, अब प्राइवेट फाइनेंस पे आते हैं। सो द स्टडी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनी। Under private finance, individuals or private entities have fewer resources to generate income. यहाँ पे थोड़ी कम उपाय होती हैं पैसा कमाने के, and this income is used to create profile and meet personal diaries, desires. So in that case, खुद की निजी चीजों के लिए जिस पैसे का यूज होता है, उसे कहते हैं प्राइवेट फाइनेंस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, कैटेगरीज भी हैं, तो दो टाइप के कैटेगरी होते हैं, पब्लिक फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस। अब इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, कंपनी, फर्म, सारे को अपना पर्सनल फाइनेंस देखना पड़ता है। जैसे आप प्राइवेट फाइनेंस अगेन, खुद के कंपनी के लिए कितना क्या बजट पड़ रहा है, कितना क्या सेविंग करना जरूरी है, कितना इन्वेस्ट करे, कब इन्वेस्ट करे, कब विथड्रॉ करे, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। यस मैम। So individuals make short-term investments, but before making any investment, they carefully evaluate their income. So अगर हम लोग की इनकम जो है थोड़ी मतलब आप देखना, ऐसे मतलब एक तो रील मैंने देखा था कल रात को, अराउंड 9 PM में रिमेम्बर। तो रील में कहा गया था, एक बंदा कह रहा था कि मारवाड़ी जो होते हैं ना, काफी अच्छा बिजनेस करते हैं, जो कि तो फैक्ट है। तो क्यों कह रहे थे ऐसा कि अगर उनकी मतलब कैपेसिटी होती है 70 लाख कमाने की ना, तो हाँ तब जाके वो 15 लाख की होंडा सिटी खरीदते हैं, ये तो है। यस है मैम। ना। तो यस। बाकी पैसे से वो इनकम मतलब बढ़ाने के लिए पैसा लगाते हैं। लेकिन जो कॉमन मैन होते हैं, जिनको बिजनेस का उतना आइडिया नहीं होता है, जब उनका इनकम 1 लाख होता है ना, तब वो 15 लाख की होंडा सिटी लोन पे लेते हैं। और यस। आपको लोन का मतलब पता है कि अगर आप 15 लाख का लोन ले रहे हो, तो वो अल्टीमेटली 30 लाख पे खड़ा हो जाएगा, यस मैम, 28-30 पे। है ना। तो वो मतलब इंटरेस्ट पे कर करके आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, यस मैम, ये है तो। ना। यस मैम। हाँ, तो अब शौक तो पूरी हो रही है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट। जो चीजें 100 में मिलती है, वो चीजें 200 में मिल रही है, महंगाई काफी बढ़ गई है ना। यस मैम। यस मैम, ये तो। लेकिन ये भी गलत नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी कि हर कोई ऐसा ही करेगा कि 70 लाख का वेट करेगा तभी जाके वो 15 लाख का होंडा सिटी खरीदे। यस मैम, ये भी है, लाइफ इज शॉर्ट। हम्म इसकी वजह से मैम। क्या पता आप 70 लाख कमाते कमाते मर जाओ, हाँ। फिर पैसा भूत लेके जाएगा, है ना। ठीक है, जैसा भी है, जिसका चॉइस है, दे पीपल आर विटी इनफ टू मेक करेक्ट डिसीजन, बट जस्ट मैंने एक रील देखा तो मैंने आपको बताया यस मैम। कि ये बस पर्सनल चॉइस है। तो ये प्राइवेट फाइनेंस हो गई कि क्या वो लोन लेना चाहते हैं,
या फिर वो वेट करना चाहते हैं कि कैपिटल इंक्रीज हो जाए, फिर कैपिटल से कुछ विथड्रॉ करके हम लोग खरीदेंगे. दिस इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनेंस. ओके, Yes, ma'am. लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंस. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि पूरा थोड़ा दिख पाए. ओके, आपके और एक दोस्त कहाँ चले गए? आज शायद वो ज्वाइन नहीं किए हैं. वो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स में दो जन हैं, और प्राइवेट इसमें पब्लिक फाइनेंस में मैं ही हूँ सिर्फ। डायरेक्ट टैक्स में 2 जन है. हाँ, मैं और मेरा दोस्त है बस। ओके ओके ओके. पब्लिक फाइनेंस में आप अकेले हो. हाँ अच्छा, हाँ। तो पब्लिक फाइनेंस एंड तब तो आपके साथ ही क्लास करना है रोज. ओके, यस मैम। तो मैं आपके साथ डिसाइड कर लेती हूँ कब क्या टाइमिंग है. आज खत्म करके हम लोग डिसाइड कर लेंगे कब क्या करेंगे. तो फिर सिलेबस आगे भी तो बढ़ाना है ना. तो हाँ हाँ शायद मैम। वीक में 4 दिन ही क्लास करा देंगे, दिक्कत तो नहीं है आपको भी, हाँ, नहीं कोई है दिक्कत ना. नहीं। कंप्लीट कर देंगे फटाफट, रिविजन करने में दिक्कत नहीं होगी. ओके, सो पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस मीनिंग. आज मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ ताकि आप डिटेल में समझ पाओ. इंट्रोडक्शन भी है हाँ आज हाँ तो. मैम। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा स्पीड अप कर लेंगे, है मैम, ना. तुम आपको तुम मेरा करके मत कीजिए ना, आप करके मत कीजिए। एक्चुअली वैसा होता नहीं है ना. ओके, आई ट्राई. So public finance and private finance meaning, so public finance is concerned with the expenditure and revenue of a government. So यहाँ पे this mainly dealing with what the expenditures and the government of whom the government. एंड रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट हो गए तो मैंने डिस्कस किया ही था कुछ दिन पहले. हाँ अभी हाँ हम लोग आ रहे हैं प्राइवेट फाइनेंस के ऊपर. इट इज कंसिडर्ड विद द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फॉर्म्स. जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बस हम लोग थोड़ा सा सेल्फिश हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, वेयर एज हियर हम लोग सारे डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं. हाँ हाँ। नेचर ऑफ बजट. गवर्नमेंट यूजुअली मेक्स अ डेफिसिट बजट वेयर एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू. वो लोग थोड़े से ज्यादा चालू है ना, तो वो लोग थोड़ा पहले से दिखाते कि पैसा नहीं है मेरे पास. हाँ, यस मैम। और प्राइवेट फाइनेंस यूजुअली क्या करता है, सरप्लस बजट बनाता है, दिखाता है मेरे पास ज्यादा है ना. यस तो मैम। मतलब उनको फिर लोन वोन लेने में दिक्कत नहीं होगी, ऐसे सोच के उन्होंने थोड़ा सरप्लस ही बनाना होता है बजट की, बाद में दिक्कत ना हो. लेकिन वही है ना कि पब्लिक को मतलब गवर्नमेंट को लोन कोई भी दे देगा, लेकिन प्राइवेट फॉर्म्स को लोन देने में बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत बहुत बार सोचना पड़ जाता है. ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बोलो सोचना क्यों ना पड़े. अब ये जो स्कैम हो गया, 10 करोड़ का स्कैम हो गया, है ना, तो लेके भाग जाते हैं लोग पैसा. आप किससे विश्वास करोगे. सो नेचर ऑफ द बजट. गवर्नमेंट यूजुअली मेक्स अ, तो मैं पढ़ा मैंने ये वाला. Objective. The objective of public finance is to encourage the social welfare and provide benefits to the general public. तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं ताकि हम लोग सोशल वेलफेयर या फिर पब्लिक को हेल्प कर पाए, बट ये तो होता नहीं है, बट स्टिल. और प्राइवेट फाइनेंस बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है एनहांस करना प्रॉफिट ऑफ द एंटिटी. कंपनी के प्रॉफिट मतलब बेसिकली हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओन कंपनी. अपनी कंपनी को देखो बस, दैट इज देयर मेंटालिटी. नाउ ऑब्वियसली अगर देखो, अगर ये भी रॉन्ग नहीं है, अगर हर कोई अपना अपना देखने लगे ना तो गवर्नमेंट का इनकम ऐसे ही बढ़ जाए, है ना. यस मैम। लेकिन वही अगर चोरी ना करे तो टैक्स इवेड करेगा तो फिर क्या ही फायदा. अब elasticity of finance. Public finance is more elastic as it has scope of drastic changes. कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इनकम, कभी कभी बहुत कम हो जाती है. तो ये फ्लेक्सिबल है, आप बोल सकते हैं. जैसे मैंने अभी रिसेंटली कल, यस्टरडे वाज संडे राइट, क्या. सो यस्टरडे मैं गई थी दिवाली के लाइट्स खरीदने, क्योंकि मुझे पता है कि अभी बहुत भीड़ हो जाएगा, फिर मैं रास्ते में चल भी नहीं पाऊंगी, इधर उधर धक्के खाते पड़ूंगी मैं. तो मैं बस कल ही चली गई थी, संडे था, मुझे पता था कि संडे मार्केट बंद रहता है, और ये सोच के बहुत लोग नहीं जाएंगे खरीदने, तो भीड़ हाँ बहुत कम रहेगा. तो था भी बहुत ही कम था, नॉमिनल भी था. 90% दुकान बंद थे, बट जो रोड साइड एकदम हॉकर्स रहते वो बहुत सारे थे. नट केस मैं जब लाइट खरीदने गई तो मुझे लगा कि पहले मैं एजरा स्ट्रीट जाती हूँ, बड़ा बाजार, बट फिर मेरे को एक स्टूडेंट ने कहा मैम चांदनी चौक चले जाइए, आपको और सस्ता मिल जाएगा. हाँ तो हाँ। मेरे को एक्चुअली, मेरा 2 घर है तो दोनों घर में पूरा पूरा लाइट लगाना था, पूरे बिल्डिंग में, और प्लस घर में भी हर विंडो में, ये वो करके मुझे अराउंड 100+ लाइट्स चाहिए थे. तो यहाँ पे मैं जब पूछ रही थी प्राइस, तो एक एक लाइट का, जो फेरे लाइट्स होते हैं उसका 30 मीटर का लेंथ होता है, तो उसका वो बोल रहे थे 80 रुपीज पीस. ठीक है, तो 80 रुपीज मतलब बहुत बजट पार जाता, बहुत ज्यादा, बिना मतलब का 7-8 हजार का लाइट कौन खरीदेगा. हाँ तो हाँ। फिर मैं जब वहां गई, मैंने पहले कुछ शॉप में देखा तो उन्होंने 40 रुपीज बोला,
फिर आगे और बढ़ी और अंदर गई तो 30 रुपीज आया। फिर आगे और बढ़ा और बढ़ा तो 25 रुपए आया। और आगे बढ़ा तो वो 20 रुपए पे आ गया, है ना। जितना आप अंदर जा रहे हो उतना आपको पैसा कम मिलते जा रहा है। तो उसके अंदर और कुछ था नहीं, थैंकफुली 20 रुपए में मुझे मिला पर पीस। तो हाँ हाँ समझो जो 80 रुपीज मांग रहा था पर लाइट, 60 रुपीज प्रॉफिट कर रहा था वो। हाँ हाँ। तो वो मैंने 20 रुपीज में लिया है टोटल 100 पीस का, और साथ साथ बहुत अलग अलग सामान भी लिया है। तो ये सब करके मेरा बहुत कम पड़ गया, है ना, ठीक है, बहुत मैंने हाँ बचा लिया। हाँ। मनी सेव्ड इज इक्वल्स टू मनी, मतलब मनी अर्नड, है ना। तो वो यस मैंने मैम। पैसा बचा लिया, तो बचाने से क्या हो गया, उससे मेरा दिवाली का ड्रेस वेस हो जाएगा, या जो भी हाँ हाँ, खरीदना हो ये खरीद तो है। लेंगे हम। तो इन दैट केस आधा काम तो मेरा हो गया। बट अभी दिवाली मतलब सबको पता है कि दिवाली की सफाई हाँ हाँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो जो घर में बैठ के काम है वो तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो शॉपिंग वाला काम है वो पहले कर लेना अरे चाहिए, हाँ हाँ। ताकि भीड़ में ना जाना पड़े। तो इन दैट केस जो मैंने अभी ये मैंने कहानी क्यों बताई अब मैं बता रही हूँ। देखो अभी मैंने वहां जब गई ना तो वो 22 रुपीज, मतलब मेरे को बहुत मन खुश हो गया दाम सुन के। हम्म। अब मैं थोड़ा भगवान की उधर जान बाजार चली गई। जान बाजार मतलब वहाँ सत्यनारायण एसी पार्क, एसी मार्केट बोल के एक जगह है, वहाँ पे भगवान के सारे चीजें बिकते हैं। तो वहां मुझे तोरण लेना था, बंदरवाल जिसे हम लोग कहते हैं, दरवाजे के ऊपर लगाते हैं हम लोग बंदरवाल। यस मैम, तो हाँ। बंदरवाल खरीदने में गई। लास्ट टाइम मैंने बंदरवाल 150-200 में खरीदा था, ठीक है, अच्छी हाँ। वाली हैवी वर्क वाली। तो अभी मैं जब गई ना तो वो बोल रहे थे स्टार्टिंग प्राइस 700 और बेस्ट वाला 2500। तो मैंने बोला क्या करना है आप लोगों को, बेचने बेचने का इरादा है कि ऐसे ही कस्टमर भगाना है बोल के दाम बोल रहे हो। तो बोले नहीं नहीं यही दाम है, आप पहली बार आई होंगी। तो मैंने कहा मैं पहली बार नहीं आ रही, हर बार दिवाली आती है और हर बार हम लोग घर सजाते हैं। हम्म, आप लोगों को ऐसा है कि आप लोग घर नहीं सजवाना चाहते तो बोल दो कि नहीं सजवाना है, हम लोग बेचेगा ही नहीं। आप हम्म, दाम जो बोल रहे हो 700 नॉर्मल, मतलब एक पतली सी लड़ी का 700 मांग रहे हो, जो हम बना देंगे तो मैंने से बोला कि मैं बनाती हूँ, आप 700 में खरीदो मेरे से। हाँ हाँ तो हाँ। मैं क्यों खरीदूंगा, मैं क्यों खरीदूंगा, मतलब आप 700 में बेच रहे हो तो मैं बना के देती हूँ ना आपको 700 में, आप हाँ, लो। नहीं 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 मैं नहीं लूंगा। तब तो आप सोचो कि आप क्या बेच रहे हो। और दाम बोलने के बाद ना, अगर मैं चुप रह रही हूँ उनके आंखों में देख रही हूँ 2 सेकंड के लिए, तो वो हंस दे रहे। हम्म। मतलब उनको भी पता है कि वो जो दाम बोल रहे हैं एकदम वाहियात रिडिकुलस। दाम बोल रहे हैं। हाँ हाँ। एकदम वाहियात, 2500 रुपए में कोई बंदरवाल खरीदेगा, पागल है क्या। ये तो बहुत पता है ज्यादा। मारवाड़ी लोग पूजा के लिए पागल होता है, जो मन वो दे देता है, लेकिन इतना भी पागल नहीं होता है कि 2500 में बंदरवाल खरीदे। तो मैं तो बहुत गुस्सा हो गई, मैंने मार्केट से निकल गई, क्योंकि किसी एक को तो फिर झाड़ पड़ जाता। मैं निकल गई मार्केट से कि नेक्स्ट टाइम जाओगे बागड़ी मार्केट तो देखते हैं क्या मिलता है। तो जो भी हो, ये क्यों, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों बताया, कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, क्योंकि आ, कुछ दुकान में क्या हो रहा है ना, वो लोग थोड़ा कम दाम बोल रहे हैं, 150-200 बोल रहे हैं, लेकिन उनके पास स्टॉक नहीं है। देखने में लग रहा है कि लास्ट ईयर का स्टॉक है, या फिर पुराना स्टॉक है, देखने में लग रहा है। और कुछ दुकान 800 बोल रहे हैं, कुछ दुकान 700 बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ गई हाँ है मैम। ना। जो यस। मन वो प्राइस लगा दे रही है वो। तो पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक। यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस नहीं है, ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया ये प्राइवेट फाइनेंस है, बट ये रेयर है, बहुत रेयर है कि आपको 10 रुपए का सामान कोई 700 रुपए बोले, और एक हाँ। आदमी नहीं सारे आदमी बोले। लग यस। रहा है ना कि लग रहा है ये लोग कोई ग्रुप ग्रुप बना लिए, ग्रुप में ये लोग डिसाइड कर लिए कि इस बार बंदरवाल 2500 के नीचे बेचेंगे ही नहीं, है ना। ऐसा ग्रुप लग यस। रहा है हमको। तो सबके बातें सुन के मेरे को लगा कि मैंने लास्ट से बोल दिया फेडअप हो गए कि आप लोगों ने एसोसिएशन बनाया है क्या इस बार, सब एक ही दाम बोल रहे हो। हाँ हाँ। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि गवर्नमेंट में देखना कभी कभी प्राइसेस ड्रास्टिक चेंज आती है। जैसे अभी कुछ महीने पहले टमाटो के दाम 300 पर केजी हो हाँ गए हाँ थे, हाँ हाँ। है बहुत ना। ज्यादा, यस मैम। मीम आ रहा था, कोई आईफोन 15 खरीदने जा रहा है तो बहुत सारे बॉक्स वॉक्स खोलने के बाद उन्होंने एक टमाटर निकाल के उनको दे दिया। तो मतलब ये सब तो ड्रास्टिक चेंजेस है ना, एकदम एक्सेप्शनल केसेस हो जाती है कि अचानक से आपको कोई चीज का प्राइस बढ़ते देखोगे। लेकिन ये चीजें बहुत कॉमन होती है प्राइवेट फाइनेंस में। अब बिजनेस में तो कोई भी दाम रख सकता है। अब कहने में तो ये भी है कि हर एक गुड़ के लिए कस्टमर होता है ना, हर एक गुड़ के लिए कस्टमर। तो 2500 में कोई भी तो कोई खरीदेगा ना, जो यस। बंदरवाल का दाम वो हाँ हाँ। 2500 रखा है, कोई तो पागल आके खरीदेगा वो।
और जो पागल खरीदेगा तो महा पागल होगा कि 2500 में पच्चीस बंडल सौ वाल बहुत खरीद ज्यादा रहे हो हैं। जाता है, मतलब काफी ज्यादा। बहुत ज्यादा, बहुत मतलब 2500 मतलब दिवाली का ड्रेस आ जाएगा, भारी भरकम ड्रेस आ जाएगा 2500 हम्म। में। है ना, मैं ब्रांडेड नहीं बोल रही, बट जो बड़ा बाजार का ही कलेक्शन होगा तो आपको बहुत अच्छी नहीं नहीं, चीजें मिल 2500 बहुत जाएंगी ज्यादा है। दिवाली में पहनने के लिए। बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा है। तो जो भी हो, फिर आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर। सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन दिस केस आर ओपन एंड नोन टू एवरीवन। तो अगर जो भी प्रॉब्लम है या जो भी जैसे मैंने और एग्जांपल दे लो, अ, हर एक चीज के लिए एग्जांपल है मेरे पास। मैं अगर ऐसे एग्जांपल देती गई तो सिलेबस बढ़ता ही चला जाएगा। ओके, फटाफट इसको देके मैं क्लोज करती हूँ एग्जांपल का सिनेरियो। अभी एटीएम में मैंने आज सीडीएम मशीन में मैंने सोचा, कैश डिपॉजिटिंग मशीन को सीडीएम मशीन कहते हैं। तो वहां पे मैंने सोचा कि पैसे डिपॉजिट कर देती हूँ। बट लास्ट टाइम मुझे एक झटका याद आ गया कि लास्ट टाइम मैंने अराउंड समथिंग अमाउंट डाला था सीडीएम मशीन में, बट रिसीट आया 0। हम्म। मतलब मैंने बड़ा एक अमाउंट डाला मशीन में और मशीन सारा पैसा खा गया, और खाने के बाद बोला है कि 0 अमाउंट डाला है मैंने। हाँ हाँ, ये तो तो। थैंक गॉड कैमरा इन्वेंट हुआ था कि कैमरा में फुटेज तो होगा ना कि मैंने पैसे डाले हाँ हैं। हाँ हाँ, तो नहीं तो फिर कोई प्रूफ नहीं आता कि मैंने पैसे लूट डाले कि नहीं जाते डाले। सारे पैसे, हाँ। तो वैसे ही मैंने फिर ऊपर गई तो सरस्वती पूजा था नेक्स्ट डे या फिर वही वीक में। तो उन्होंने बोला कि 5-6 दिन का टाइम लग जाएगा। तो मैंने बोला अगर कोई आदमी एक भारी भरकम अमाउंट डाल रहा है ना अकाउंट में, तो इसका रीजन वो लोग सेविंग्स अकाउंट के लिए नहीं डाल रहे हैं, कोई जरूरत होगी तभी डाल रहे हैं। और भारी भरकम अमाउंट अगर आप ऐसे ही बोलोगे 5-6 दिन डिले होगा, तो आदमी काम कैसे करे। हाँ हाँ, वो तो है ना, तो किसी को जैसे। भेजना होगा, इमरजेंसी होगा, हॉस्पिटल होगा, कुछ ना कुछ तो काम होगा, बोल के इतना बड़ा अमाउंट कोई डाल रहा है अकाउंट में। हाँ हाँ। तो उनको तो मिनिमम मतलब क्या बोलो, बैंक वाले से तो बात करना मतलब दीवार से बात करना, उन लोग को कुछ समझ में नहीं आता। को क्या पता वो लोग क्या पढ़ के बैंक में गए हैं, जो बेसिक बैंकिंग का ही नॉलेज नहीं उन लोग के पास। हम्म। ओके, तो ये बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर केसेस आर ओपन एंड नोन टू एवरीवन। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये सीडीएम वाला जो केस है ना, पैसा आपने डाला है और पैसा आपके अकाउंट में नहीं गए हैं, तो ये वाला केस मैं अकेले नहीं हूँ जिससे हुआ है, सब बहुत सारे केसेस है। जब मैं मतलब चिट्ठी लिखने गई ना कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ, तो मैंने हाँ देखा लिटरली 4-5 फाइलें बनी हुई है मोटी मोटी, जहाँ पे वही सेम प्रॉब्लम का हेडिंग दिया हुआ है। तो मतलब आपको पता है कि ये प्रॉब्लम ऑफन हो रही है। अगर हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करना चाहिए, या फिर आप मशीन को, डिपॉजिट मशीन को ऑफ कर दो। हाँ। आप ह्यूमन लेबर है आपके पास, आप ऊपर बुला लो बैंक में, वहां पे डलवा लो। तो आप क्यों ह्यूमन को हैरेसमेंट कराने के लिए, आपको पता है कि ऐसे 100-200 केसेस पेंडिंग है मेरे पास, वही तक मैं रिजॉल्व नहीं कर पाया। तो अब देखो, हम लोग पढ़े लिखे इंसान है, हम लोग को पता है कि कहाँ कौन सा कॉल करने से काम बहुत स्मूथली हो सकता है। तो मैंने स्मूथली ओम्बड्समैन में कॉल कर दिया। कोई भी कंपनी का जो हेड होता है, मतलब हेड डिपार्टमेंट, उसे ओम्बड्समैन कहते हैं, कंप्लेंट का। तो मैंने ओम्बड्समैन में कॉल किया, करने के बाद मैंने डायरेक्टली ब्रांच मैनेजर के नाम लगा के बोला कि ये आदमी है, एंड दिस पर्सन इज saying that this amount will be debited after 7 to 8 working days. That will around, with the whole calculation, might take 15 days for the amount to come back to my account. But if I have chosen this bank, अगर मैंने आपके बैंक को चूज किया है और आपके बैंक से मैं ट्रांजैक्शंस कर रही हूँ, तो फायदा इसमें आपका भी है, आप मेरा मुंह देख के मेरा पैसा नहीं ले रहे हो। हम्म। सो इन दैट केस, अगर आप ये मिनिमम हेल्प आप नहीं कर सकते कस्टमर को, तो आपका कोई राइट नहीं है कि मेरे फैमिली का यहाँ पे 8 अकाउंट है और मैं 8 अकाउंट अभी क्लोज करूंगी। यही बात है विदड्रॉल सर। विदड्रॉल ऑफ ऑल एफडीज, सारा एफडी मैं अभी तोड़ूंगी। तो फिर बैंक मैनेजर दौड़ता दौड़ता आ गया मेरे पास और बोला कि मैम प्लीज प्लीज अभी मैं कर देता हूँ। इमरजेंसी फंड बैंक के पास ऑलवेज होता है, हाँ। अगर 4-5 लाख का अमाउंट का प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको दे सकते हैं वो कस्टमर को। हम्म। तो मैंने बोला कि अभी मैं सारे एफडी में निकाल लूंगी इस बैंक से, सारे एफडी निकाल लूंगी, सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दूंगी और सारे अकाउंट्स अभी खड़े खड़े मैं क्लोज कर दूंगी। और काम नहीं हुआ तो हम्म। 2 सेकंड में मेरा पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। हाँ, वो तो आ ही जाएगा, वही तो। है ना, यस मैम। तो मतलब पावर कस्टमर के हाथ में है। अब मैंने ये भी देखा है, कुछ जो एकदम मतलब नॉमिनल बैकग्राउंड से होते हैं ना, उनको पकड़ पकड़ के ये लोग डीमैट अकाउंट खुलवा देते हैं।
हाँ हाँ अब उनको पता भी नहीं है डीमैट होता क्या है, शेयर होता क्या है, उनको नॉलेज ही नहीं है। शायद वो या उसके बच्चे खेलते खेलते कुछ एक दो बटन दबा दिए तो उनके अकाउंट से 4-5 हजार चला गया। हाँ हाँ। ये 4-5 हजार उनके लिए क्या मायने रखता है, ये तो हम लोग को नहीं पता ना, है ना। हम लोग के लिए 4-5 हजार चला गया, ठीक है, आ जाएगा सप्ताह हफ्ता, 2 हफ्ता में ये देखा जाएगा क्या हो गया। लेकिन किसी के लिए शायद वही अमाउंट 10 लाख के बराबर हो। हाँ, यस मैम, वो तो है। तो एक आदमी रोता हुआ बैंक में आया मेरे सामने कि और मैं थी, थैंक गॉड, तुझसे काम मैंने कराया। तो वो रोता रोता बैंक में आया, आके बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हो गया, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं। तो बैंक मैनेजर बोल रहा है तो उसमें मैं क्या करूँ, आपके अकाउंट में पैसा नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उनका थोड़ा सा ना देख के मैं थोड़ा सा हंसी की, ये कैसा बात हो गया। तो मैं अपना चेक क्लियर करा रही थी, तो मैं वेट कर रही थी, तो तब तक ना वो आदमी और रोने लगा। लोग बोल रहे कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन है और मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, और जब तक ये पैसा नहीं आएगा उसका ऑपरेशन मैं स्टार्ट नहीं करवा सकता। तो फिर मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम फील हुआ कि क्या हो गया इसके साथ। तब मैं थोड़ा उठ के गई पूछने के लिए कि क्या बात है, क्यों हुआ है। तो उन्होंने जब दिखाया ना अपना अकाउंट, तो मैंने बोला आप अगर प्रॉब्लम ना हो तो आप अपना अकाउंट का योनो खोल के मुझे दिखा सकते हैं। तो उन्होंने दिखाया, तो मैंने देखा कि लास्ट वही कुछ शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। तो मैंने हम्म। उनको पूछा कि आपने इन्वेस्ट किया है, आपको पता है ये क्या चीज है, या फिर आपके फोन लेकर किसी ने और इन्वेस्ट किया है। तो वो बोल रहे कि नहीं मेरे को तो कुछ नहीं पता। तो मैंने बोला देखो कुछ नहीं पता बोल के तो होता नहीं है, या फिर आपने किया है या फिर किसी और ने किया है, लेकिन हुआ तो आपके अकाउंट से है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ तो यस नो ऑप्शन आ रहा था और मैंने कुछ क्लिक कर दिया हटाने के लिए, उसको हट नहीं रहा था बोल के मैंने हटाने के लिए कुछ क्लिक कर दिया। तो जब बैंक वाले एम्प्लॉय को पता है कि इस आदमी को फोन चलाना तक नहीं आता, है ना, उसको ऑप्शंस हटाना नहीं आता, उसको विंडो क्लोज करना नहीं आता, तो आप क्यों उस आदमी को बिना मतलब का ये आप अकाउंट अकाउंट में शेयर वेयर क्यों खोल दे रहे हो। नहीं, ये सही तो बात। एब्सोल्यूट स्कैम, है ना। आप यस मैम। अपना अकाउंट खुलवाने के लिए आप किसी का भी जो मन कर दोगे, ये तो ठीक नहीं है ना। तो यस। ये सब तो और भी एग्जांपल्स है, एग्जांपल देते टाइम खत्म हो जाएगा। मैं आगे बढ़ रही हूँ। ऐसे करते रोज थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दूंगी तो और बहुत नॉलेज आ जाएगी आपको, यस मैम। एडिशनल नॉलेज सब्जेक्ट के हाँ साथ हाँ। साथ। ओके, सो अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इज केप्ट अ सीक्रेट। अब बड़े बड़े कंपनीज में आप देखोगे कि वो लोग चेक चेक के बताते हैं क्या, मतलब उनके पास ये वाली मीम एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है कि चिल्ला चिल्ला के सारे स्कीम बता दो, यस। है ना। ये लोग एकदम नहीं चिल्लाएंगे, ये लोग चुप रहेंगे और सब कुछ हाँ चुपचाप हाँ। करेंगे। कुछ स्कीम किसी को नहीं बताने वाले। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब तो मैंने अभी पढ़ा ना, मैं डबल यही टाइम क्यों होगा। पढ़, ओके। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, द गवर्नमेंट हैज मोर सोर्सेज ऑफ क्रिएटिंग मनी सच एज प्रिंटिंग मनी एंड एस्टैब्लिशिंग लॉज टू रेज इट्स रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट के पास अलग अलग वेज होती है, जब पैसा शॉर्ट पड़ता है ना, तो हम लोग की इंडियन गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ है, वो और नोट प्रिंट कर देती है। नोट प्रिंट करना मतलब इन्फ्लेशन को बुलावा देना। तो कौन मतलब पता नहीं है लोगों को कौन कौन बैठाया है इस इम्पोर्टेंट सीट्स पे, जो ये लोग इतने गलती डिसीजंस लेते हैं। सोचो अभी आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं आपके हाथों में, ठीक है, लेकिन आप किसी और में नहीं बांट रहे हो। लिमिट है प्रिंटिंग का 100, आपके पास 100 ही है, किसी और के पास नहीं है। तो करना क्या चाहिए, आपसे 100 लेके किसी में बांटना चाहिए। बट गवर्नमेंट क्या करेगा ना, और 100 बांट देगा, वरना और 100 प्रिंट कर देगा। फिर घूम घूम के पैसा आपके पास 80 आ जाएगा, तो आप तो अपने पास जमा के रख दे रहे हो पैसा, हम्म। आप आगे नहीं बढ़ा रहे हो। और गवर्नमेंट क्या कर रहा है, पागल गवर्नमेंट, और प्रिंट और प्रिंट और प्रिंट, तो पैसे का वैल्यू तो कम जा रहा है ना। यस जब मैम। पैसा कम रहेगा मार्केट में तभी ना उसकी कीमत रहेगी। यस मैम। अगर आप ऐसे लाइफ में भी होता है, आप दोस्तों के साथ बहुत बात कर रहे हो, बहुत बात कर रहे हो, बहुत बात कर रहे हो, सब कुछ शेयर वैल्यू कर रहे कम। हो, हाँ हाँ। बहुत डिटेल्स दे रहे हो, ओवर शेयर कर रहे हो, लाइक दीपिका पादुकोण ने अभी जो मैसअप किया, जो इतना बड़ा प्रॉब्लम अभी चल रहा है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप देखो दीपिका ने ऐसा कमेंट कर दिया या फिर ऐसे कुछ चीजें बोल दी जो हम्म। कि ओवर शेयर कर दिया उन्होंने। जरूरत नहीं था इतना बोलने का, वो बट इतना करंट। बोल के वो खुद पे मतलब खुद के पैर पे खुद खुद ही उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी, मतलब ऐसा ऐसा बोल दिया उन्होंने कि अभी उनका इमेज इज इक्वल टू जीरो, यस मैम, ये तो। है ना। तो इन हम्म। दैट केस कुछ ओवर सेंसिटिव चीजें आपको थोड़ा सा सावधानी से डील करनी पड़ती है, इतना हाइपर नहीं होना पड़ता है। जस्ट लाइक दैट गवर्नमेंट भी वो बच्चे ऐसा हो जाता है जब पैसा नहीं होता है, और हाइपर होके क्या करता है ना, वो बच्चे ऐसा और भी खरीद लेता है, मतलब और भी पैसे प्रिंट कर देता है। तो अल्टीमेटली अगर मेरे पास सपोज मार्केट में 5 नाइकी ने रिन्यू
लॉन्च किया, करने के बाद उसके 100 यूनिक मॉडल निकाले, हम्म, ओवरऑल वर्ल्ड में वो बिकेंगे। तो वहां से अगर 80 पीसेस इंडिया में ही बिक गए तो 20 बचा, यस मैम। 20 ओवरऑल वर्ल्ड में गया है ना। तो अगर नाइकी ये देखा कि ओहो 80 तो इंडिया में चला गया है, एक काम करते हैं ना, ये जो ओरिजिनल जो मैंने यूनिक चीजें बनाई है इसको और 100 कर देते हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, वो जो 100 एकदम यूनिक थी उसका वैल्यू कम गया क्योंकि मार्केट में उससे कंपटीशन में और 100 आ गया, हाँ हाँ। है ना। अब देख रहे हैं ओहो अच्छा टर्की में नहीं पहुंचे, इस्तांबुल में नहीं पहुंचा, एक काम करते हैं और 100 निकाल देते हैं। करते करते वैल्यूएशन कम इतना होती जाती कॉमन हो है। गया, इतना कॉमन हो गया वो कि अब हर किसी के पास है, हाँ तो हाँ। उसका वैल्यू तो कम गया ना अल्टीमेटली। यस मैम। तो ये वाली तो थॉट हम लोग गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट को शायद रजनी मैम नहीं सिखाई होगी ना, तो गवर्नमेंट को पता नहीं होगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। अब देखो ये भी बोलना गलत है, उन लोगों को सब पता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बट उन्होंने करना कुछ नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है मार्केट में, क्या होगा, क्या मतलब बिगर पिक्चर के, और उन्होंने मतलब अपना टेंशन देना ही नहीं है उनको, बस स्मॉलर पिक्चर, मतलब खुद का प्रॉफिट, तब का प्रॉफिट मिल जाए बस, आंखों में पट्टी पड़ी हुई है सबकी। तो पब्लिक फाइनेंस, द गवर्नमेंट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फर्स्ट एंड देन सर्चेस फॉर वेज टू जनरेट इनकम। पहले वो लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर कितना होगा देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि इनकम कहाँ से हो सकता है। बट हम लोग घर में क्या करते हैं, हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग का इनकम कितना है, उसके बाद एक्सपेंडिचर करते हैं, यस मैम। है ना। हाँ हाँ। गवर्नमेंट को देखो अलग के रास्ते पे चल रही है महाशय, ये पहले देखते हैं कितना खर्चा होगा, फिर वो इनकम करती है, मतलब फिर वो निकलती है पब्लिक से पैसा मांगने के लिए, हाँ हाँ। समझ रहे हो। यस तो मैम। प्राइवेट फाइनेंस इज प्राइवेट इंडिविजुअल फर्स्ट इवेलुएट्स हिज इनकम। पहले जो मैंने कहा कि हम लोग जो करते हैं पहले देखेंगे, आपको सपोज आपको मैंने बोला कि एक काम करो, आप 10,000 रुपए ले लो, ठीक है, और आपको मैंने बोला कि दिवाली शॉपिंग वॉपिंग जो करना है करो, तो आप सोचेगा कि दिवाली में तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान खरीदना, है ना। तो भगवान मैंने खरीद लिया, अब भगवान का सामग्री पुराना ढमकाना जो हो गया हो गया, अब घर का साफ सफाई के लिए आप किसी को बुलाएगा तो बुलाएगा, फिर आप लास्टली आप कपड़ा वपड़ा जो खरीदना होगा, गिफ्ट देना होगा, मिठाई खरीदना होगा, या क्रैकर्स खरीदने होंगे, जो खरीदना होगा आप करोगे, है ना। तो यस हम मैम। लोग पहले पैसा देखते हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग खर्चा करते हैं। हिसाब बट से। गवर्नमेंट क्या करेंगे, गवर्नमेंट देगा ओ हो एक काम करते हैं, पहले जितना लाइट लगाना ना पूरा कोलकाता को सजा लो, लाइट लगा लगा के पागल बना दो, इतना लाइट लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करो और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करो, करने के बाद जितना पैसा हो रहा है अब अच्छा लो इतना बजट हो गया, अब ले लो, इससे काटो उतना, उससे काटो उतना, इससे काटो उतना, कट कट के सबके पैसे से अपना घर भर लो। तो ये तो डिसीजन रॉन्ग हो गया ना। आप ऐसा करोगे तो फिर तो मतलब आपको देखना है कि टोटल मेरा एक ब्रिज बनाना है, ठीक है, मेरे पास बजट चाहिए 10 लाख का या 20 लाख का, ये 10 लाख 20 लाख आपने जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया ना उसमें से शायद 1 लाख ही यूज हो रहा है ब्रिज बनाने के लिए, हम्म, इसीलिए ब्रिज टूट के गिर जा रही है। आप बोलो, मैं रिसेंटली जो फोर्ट्स घूम करके आई, 1000 साल 1500 साल पुराना है, एक मतलब क्रैक तक नहीं है उसमें, और ये जो 5 दिन का घर बनाते हैं लोग उसी में हाँ सीलन लग जाती है, कहीं से क्रैक आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जा रहा है। मतलब क्या आप लोग जिस सामान जो यूज कर रहे हो वो सामान ठीक नहीं है, है ना, आप उसमें ये जो है ना मतलब कुछ झोल कर रहे हो, कहीं तो पैसा कमाने के लिए कुछ करने के लिए आप कुछ कर रहे हो। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी while वी आर डिफरेंशिएटिंग पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। अगर ये सब चीज एकदम नॉर्मल लाइफ में जो एग्जांपल्स होती है ये याद रखोगे ना, तो ये लिखना और ये याद करना आपके लिए इजी हो टास्क जाता नहीं बनेगा, बहुत इजी हो जाएगा फिर है। यस तो। मैम। अब राइट टू प्रिंट करेंसी, हम लोग के पास तो कोई राइट नहीं, हम लोग के पास कोई राइट नहीं है, तो प्राइवेट वाले एकदम पीछे हट जाए, मतलब आर नॉट अलाउड टू क्रिएट करेंसी। बट पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट है, ये तो मैंने अभी कहा आपको कहानी, इसके पास खत्म हो जाती है फिर वापस प्रिंट में डाल देते हैं, है ना। अब इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, इतना सारा पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं होगा, हार्डली 10 पॉइंट ज्यादा है शायद यहाँ पे, बट सारा कर लेते हैं कि आपको कोई हार्ड लगे कोई इजी लगे, जो भी लगे आप अकॉर्डिंगली लर्न कर लेना। Effect on economy, public finance is a tremendous impact on the overall economic system। इसका काफी हाई इम्पैक्ट होता है क्योंकि इसके कुछ भी डिसीजन से, छोटे छोटे डिसीजन से भी बाकी हर एक चीजों में इफेक्ट हो जाती है।
प्राइवेट फाइनेंस हैज लिटिल और नेग्लिजिबल इम्पैक्ट इन ओवरऑल इकोनॉमिक। ये क्या कर रहा है, इसका खुद का डिस्क्रीट है ना। अगर ये अटॉल कुछ एकदम अरीना से बाहर जाके डिसीजन ना ले ले, अदरवाइज इसी का खुद ही प्रॉब्लम है, इसका खुद प्रॉब्लम है, जो ये करेगा या अपने आप भुगेगा, मतलब भुगतेगा। Differences in credit status in public finance, government's capacity for borrowing public credit is unlimited. जितना मांगोगे उतना मिलेगा. But in private finance, individuals' credibility and borrowing capacity or capability are restricted. Restricted, yes. आपकी कंपनी का जितना वर्थ है उतना ही रिवैल्यूएट करने के बाद आपको परसेंटेज में आपको मिलेगा. बट आप जितना मांगोगे, आप अचानक से आके बोल रहे हो मैं तो साइकिल कंपनी खोलूंगा, तो उसके लिए मेरे को 50 करोड़ चाहिए, तो आपको उल्टा बंदा जो है ना, उल्टा बोलेगा कि तुम जिस रास्ते आए हो ना उसी रास्ते वापस चलो. ठीक है मेरे पास इतना पैसा नहीं है तुम्हारा साइकिल कंपनी को अफोर्ड करने के लिए. हाँ, लेकिन अभी जो रिसेंटली आप देखोगे कि जो स्विगी वाले हैं या फिर जोमेटो वाले, तो बेसिकली जो डिलीवरी बॉयज हैं, ये लोग अभी ई बाइक या फिर ई साइकिल यूज कर रहे हैं, हाँ, विच इज अ गुड आइडिया, which गुड is a good इनिशिएटिव, initiative, I would say. है ना, गुड इनिशिएटिव. आई जस्ट सेड दैट. सो इन दैट केस मतलब ये ना, मतलब वैसा साइकिल ही नहीं बेच रहे वो लोग, ऐसा डिवाइस बनाए हैं कि कोई भी साइकिल इलेक्ट्रिकल बन सकता है ना. वो आप बस अटैच कर लो और कुछ तो मैकेनिज्म होता है, करने के बाद आपकी नॉर्मल साइकिल भी ई साइकिल बन सकती है ना. तो ये Yes. वाला आइडिया काफी अच्छा है, क्योंकि इट वाज वेरी मतलब पैथेटिक टू सी दिस पीपल एट, मतलब अब हम लोग भी तो क्या करें, हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं. व्हेन आई वर्क फॉर माय थीसिस, तो मुझे घड़ी का ध्यान नहीं रहता है, काम करते करते कभी सुबह 4 बजे बज जाते हैं और मैं लंच या डिनर स्किप कर जाती हूँ. तो रात को मैं ऑर्डर करती हूँ खाना, तो मैं देखती हूँ कि मतलब छोटे छोटे बच्चे, नॉट वेरी ओल्ड, 17 18 19 इतने होंगे, हाँ, तो वो लोग ना साइकिल लेके रात को आते हैं डिलीवर द फूड. तो मैं yes. थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर देती हूँ उन लोगों को कि मतलब वो लोग इस टाइम पे काम करे, तो मतलब ये बहुत जरूरी होगा उनके लिए काम करना, या हाँ, फिर कोई अपना नींद छोड़ के क्यों ये काम करने जाए, सही बात है. है ना. Yes. 4 बजे सोचो, जहाँ पे एक 18 19 के बच्चे अभी मतलब उनका लाइफ क्या होना चाहिए था, और उन्हें क्या करके अपना लाइफ कर रहे हैं ना, मतलब कोशिश तो कर रहे हैं ना. तो आई फील वेरी नाइस दैट टुडे जनरेशन में ऐसे भी बच्चे हैं जो स्पॉइल्ड ब्रैट नहीं है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट. आई Yes. हैड अ स्टूडेंट, वो बहुत रिच था, फैमिली बहुत अच्छी थी, वेल टू डू था, बट आई नेवर आस्क्ड हिम व्हाई, क्या कि क्यों वो कैसा करता था. मतलब भवानीपुर स्टूडेंट, ही हैड अ गुड बाइक ऑल्सो. तो वो ना रात को आफ्टर मतलब 10 या ऐसे ही 9:30, तो वो रैपिडो के लिए काम करता था, है ना. एंड मैं बोलती थी कि तेरा बाइक जितने का है, अगर कुछ भी हो जाएगा ना, तो तेरे बाइक में ठीक कराने के लिए पैसे लग जाएंगे, ये क्यों कर रही है तू. तो मतलब आई नेवर गॉट अ प्रॉपर रिप्लाई उससे कि क्यों वो किया है. उसे पंजाबी गए, व्हाई डिड यू यूज्ड टू डू दैट, आई स्टिल डोंट नो. एंड ऐसी चीजें ना, मतलब आपके माइंड में एक इम्प्रेशन लीव कर देते हैं कि वेल टू डू है, फिर भी मतलब ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग. दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट एंड इनसेन, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो लोग रात को एटलीस्ट मतलब दस हाँ, से हाँ. चार या 10 से 2 रैपिडो के लिए काम करें. एंड यू नो, तब मतलब तब काम करना इज नॉट वेरी सेफ, Yes, ma'am. है Yes. ना, क्योंकि वो मतलब ट्रक वाले एकदम ही गंदे से चलाते हैं एंड कभी भी कुछ भी हो सकता है. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंसेस इन क्रेडिट स्टेटस. जब कहा कि मैंने इन लोगों को अनलिमिटेड मिलेगी, इनको रेस्ट्रिक्टेड है. अब टाइम होराइजन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज 1 ईयर, और यहाँ पे नो फिक्स टाइम होराइजन, कितना भी लेना है आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश. मैम, ये एग्जाम्पल, टाइम हॉराइजन क्या हुआ, मतलब 1 ईयर? मतलब कोई भी पॉलिसी या कुछ भी आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो मिनिमम 1 ईयर का टाइम, मतलब गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी आपको 1 ईयर तक होता है मिनिमम. लेकिन प्राइवेट में वैसा कुछ नहीं है, आपने कोई पॉलिसी निकाला है तो वो शायद रेन्यू होके हर साल चलता रह सकता है. लेकिन गवर्नमेंट में आपको शायद वो पॉलिसी लैप्स हो जाता है, मतलब हर एक साल में आपके न्यू पॉलिसीज आ जाते हैं ना, तो लास्ट ईयर का पॉलिसी क्लोज हो जाता है, वैसे करके. समझ आई. यस मैम. अब एग्जाम्पल हो गया इसका, पब्लिक डेट, टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सारे. अब यहाँ पे आके मॉर्गेज, लोन, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आपकी एग्जाम्पल हो गई प्राइवेट फाइनेंस. आज ही मैं गई थी बैंक में, तो मैंने देखा 0.80 का गोल्ड लोन दे रहे हैं वो.
0.80 का क्या है? 0.80% का गोल्ड लोन दे रहे हैं SBI। Okay. So, अब example, explain the principal amount of social advantage. Again, an important question. So, पहले social advantage होता क्या है? अच्छा, मैंने अभी जो आपको पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस समझाया, समझ आई ना? Yes, कोई ma'am. डाउट? No. ओके। सो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज अ की प्रिंसिपल गवर्निंग पब्लिक फाइनेंस। ये एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जिसको याद रखने का जरूरत है व्हाइल डूइंग or calculating public finance. So we are dealing with public finance when we talk about social advantage. It aims at maximizing the economic welfare of people. ये काम क्या है इसका? पब्लिक फाइनेंस का ही काम है कि ओवरऑल आप देखोगे कि माने सोशल वेलफेयर ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, and with the people of controlling the financial activities of the government. And maximum social advantage principle was given by Hugh Dalton. So in that case एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि जो प्रिंसिपल जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो है ये इसका मेन एक्टिविटी होगा पब्लिक फाइनेंस का सोशल वेलफेयर. So in that case public finance consists of public expenditure and revenue, जो हम लोग डिस्कस करके आए हैं अभी कुछ देर पहले. So expenditure by the government creates benefits for utility. मतलब in that case जितने भी काम में आ सकते हैं पैसे उतना हम लोग को यूज करना है Yes, to ma'am. help the people around us. अब concept of maximum social advantage क्या हो गया? On the other hand, when government imposes tax, it results in sacrifice or disutility. मतलब क्या हम लोग के पैसे चले जा रहे हैं हमसे दूर. According to the maximum social advantage principle, revenue expenditure should be adjusted in such a way that surplus of utility is maximized and disutility is minimized. तो ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस ले रहा है तो ऐसे ही उसको अपना चार्ट या शेड्यूल या जो भी हो रूटीन ऐसे ही प्लेस करना चाहिए ताकि वो डिसयूटिलिटी ना बन जाए. मतलब वो पैसा हम लोगों के लिए एक बर्डन ना बन जाए. ट्रिवियल अमाउंट रहे बट हाँ कंट्रीब्यूट करने लायक भी रहना चाहिए. ठीक है, ऐसा भी नहीं कि 1 रुपए कंट्रीब्यूट करो तो फिर क्या ही फायदा कर गया है ना. करे हो तो आप Yes, थोड़ा ma'am. अमाउंट करो लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि हर एक आपको सोचना पड़ेगा कि आप हम पे कर रहे हैं लेकिन हर कोई पे करता कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, है ना. Yes, ma'am. अब कंसेप्ट ऑफ ये तो हो गया. अह अब आ रहे हम लोग नहीं ये वाला कर नहीं पड़ा मैंने. हाँ, it is attained at a point when marginal utility MU of expenditures equates the marginal utility of tax imposed, and the principle says the government should spend at the base of equal marginal principle and the fixed taxes in such a way that marginal utility MU of money paid as tax shall be same as all taxpayers. अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसी है जो आई नीड टू एक्सप्लेन वंस. So do you remember TU and MU? Uh, No. Okay. One of my favorite examples. Water diamond paradox. TU मतलब total utility, MU मतलब what marginal utility. अब TU and MU of water and diamond. Let's come. Yeah. So total utility मतलब यूजेज आपको यूज करके कितना शांति मिल रहा है. तो पानी एक ऐसा चीज है जिसको यूज करके बहुत शांति मिलती है, तो इसका टीयू जो है काफी हाई है, I have. इसका यूटिलिटी जो है काफी हाई है. एक मिनट. हेलो.
Yes, ma'am. I'm एक मिनट आदर्श. Yeah, tell me. I'm doing good, Dishita. Tell me. Yeah, I'm home teacher. Tell me. Hmm. At what time? Okay, okay, you come. I'll be home. I'll be home. No worries. Hmm. Okay, okay. Mm-hmm. Fine, fine. You can come. I'll be no issues. Bye bye. Yeah, Adarsh. I hope I'm spelling your name correctly. Adarsh, right? Anand, Siddharth, ma'am. Anand. Okay, Siddharth. Siddharth. Yes, ma'am. Sid. Sid is fine. Siddharth is too big. Yeah, totally. Yeah. So water, the TU of water is काफी high. बहुत ज्यादा use होता है water का. So that is TU of water is काफी high. Whereas diamond का use आप बताओ क्या है diamond का use? बहुत कुछ नहीं. कुछ नहीं। दिखावा हाँ हाँ। झूठ का. फिर भी मैं खरीदते रहती हूँ. I am a sucker for diamonds. अभी ना डायमंड के प्राइसेस 35% लो चल रही है. ओ, और मेरा दिल ना एकदम मतलब बस डायमंड शॉप्स पे अटका हुआ है. बट आई हैव टू मच एक्सपेंडिचर्स दिस ईयर, सो आई डोंट नो व्हाट टू डू. ठीक है, let's see. I'll buy something or the other. My mother just stops me from buying diamond, says there's no resale value. But I say that why to sell them? If I'm alive, why to sell them? If I die, we'll see. Whoever sells it will sell it. But if I'm alive, I'm not selling it. Okay. So water and diamond. So TU, when the use is काफी high, and the diamond the use is very low. But what about the marginal utility, the price point of view? The marginal utility of water is very low. मैम मार्जिनल यूटिलिटी लेमन के टर्म्स में क्या होगा, जैसे क्या है? Uh, if I say it into layman's terms, suppose आपको बहुत प्यास लगा है, बहुत ज्यादा. ठीक है, तो क्या? आपको मैंने बहुत ज्यादा प्यास लगा है आपको, हाँ हाँ थर्स्टी है थर्स्टी. हाँ तो हाँ। मैंने आपको एक गिलास पानी का बॉटल दिया, हम्म, है ना. एक गिलास पानी दिया, आपने पी लिया. आपको फिर उसके बाद मैंने और एक बॉटल दिया और पीने को कहा. उसके बाद मैंने और एक बॉटल दे दिया आपको. तो जो पहली बॉटल आपने, जब बहुत आपको प्यास लगी हुई थी, तो आपको जितना मतलब शांति मिला वो पानी पी के, हाँ हाँ। तो वो शांति के आप तीसरे नंबर बॉटल के साथ कंपेयर कर सकते हो इन टर्म्स नहीं ऑफ मैम। नंबर? नो, राइट. तो दिस इज लेमैन्स लैंग्वेज मार्जिनलिटी. बट अगर मैं आपको बोलूं इन कंपैरिजन टू TUMU, तो MU में बेसिकली प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन वी आर कंपेयरिंग TU एंड MU, तो वाटर का दाम देखो इतना कम, 10 रुपए में भी बिकता है. लेकिन डायमंड्स सॉलिटेयर 1 लाख 1.5 लाख के नीचे तो कुछ है ही नहीं, यस अच्छे मैम। वाले बड़े वाले, है ना. तो यस। मतलब इसका MU काफी हाई है. बट अल्टीमेटली ये क्या गुड हो गया, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील. इको पे आपने पढ़ा होगा बहुत पहले जब हम बहुत छोटे थे. आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील मतलब जो भी. ओ, आप तो साइंस वाले थे ना, हाँ हाँ। तो फिर तो आपने नहीं पढ़ा है. ठीक है, समझ गया. आपको उससे मेथड में समझाना है कि आपने 11th तक नहीं पढ़ा है. तो MU बेसिकली TUMU में आपको ये तो समझ में आ गया कि प्राइस जो है वाटर का काफी कम होता है, लेकिन यूज इसका सारे दिन होता है. एक हाँ बार क्या हुआ था, मेरा एग्जाम था PhD का, मैम, नेक्स्ट डे. आपका पीएचडी, ये पीएचडी कौन से स्पेशलाइजेशन में है? फाइनेंस, फाइनेंस. अच्छा अच्छा, ओके। तो जब मैं PhD का मेरा एग्जाम था, नेट था नेक्स्ट डे, और शाम को ना अचानक से पानी आना बंद हो गया था. मैं अकेली रहती हूँ. आई बॉट माई फ्लैट at the age of 24, when I was 24. What is your age now? आई इज 24 राइट नाउ। You're 24 now. यस मैम। Okay. So, when I was 24, I bought my flat, this flat. And I'm not very old. I'm just 25. Okay. I don't know how, but yeah. So, when I bought this house, I used to stay alone here for my recording and everything. And what happened suddenly in the evening, पानी आना बंद हो गया. And पानी आना बंद हो गया मतलब क्या ना, and you to think कि नेक्स्ट डे आप कैसे नहाओगे, आप हाँ, फिर वॉशरूम सारी जाओगे तो चीजें पानी उग नहीं है. जाती है। यस हाँ. मैम, सारी चीजें उग जाती है फिर तो। हाँ, पूरा लाइफ जो स्टॉप हो गया अब तो. हम्म, हम्म,
अब क्या करेंगे? अब मतलब मैं ना पढ़ नहीं पा रही हूँ। आई वॉज वेरी टेंस। मैंने बिल्डिंग के सेक्रेटरी को बुलाया और पूछा। फिर मैंने सोचा कि प्लम्बर को बुलाना होगा, लेकिन प्लम्बर आएगा तो फिर मुझे उसके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा, तो मैं पढ़ूंगी कैसे? तो एक टेंशन मेरे दिमाग में काम किए जा रहा था। तो मेरे को एक आंटी ने कहा, मेरे नेबर ने, कि काम करो ना, घर के सारे नल खोल के रख दो। हाँ हाँ हाँ। और तब मैं मम्मा को कॉल करूंगी, फिर मम्मा भी टेंशन में आ जाएगी, तो मम्मा को कॉल करने का ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर मैं सारे नल खोल के रख दी, और मतलब 1 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी बीत गया, पानी नहीं था। हम्म, एंड अब मेरे को नेबर बोल रहे हैं कि आप मेरे घर में आके नहा लो। बट ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है कि मैं आपके नहीं घर में नहीं, जाकर बिल्कुल नहा लूं। बिल्कुल, हाँ हाँ। तो मैं अपने घर चले जाऊं ना, सिर्फ मेरे घर पास में ही है, हम्म, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर 3 3.5 घंटे बाद एक नल से पानी की आवाज आई। तो मैं शांति हुआ मेरे को, तब मैं जाके पढ़ पाई। तो सोचो, इतना सस्ता पानी जिसका कोई वैल्यू ही नहीं लगता है, पानी है हर जगह मिल जाएगा, ऐसा वाला फील होता है। हम्म। जब मैं फोर्ट्स पे ऊपर चढ़ रही थी ना एकदम जब टॉप में पहुंचने वाली होती थी, और बहुत धूप था, अराउंड 35 डिग्रीज टेम्परेचर था, और हम लोग दोपहर को पहुंच रहे थे फोर्ट्स पे, तो बहुत ज्यादा गर्मी था। तो जब ऊपर पहुंच रहे थे, ऊपर ना पानी, मतलब कोई भी पानी बस बेच दो, जितना भी दाम लोगे ले लो, हाँ हाँ लेकिन हाँ, पानी बेच दो। अंडरस्टैंड, हाँ। बट ये तो, पानी नहीं था, कहीं पानी नहीं है। तो मैं ये सोचने पावागढ़ लगी। में भी होता है, पावागढ़ है ना यहाँ पे। हम्म। तो मतलब जब पानी की जरूरत महसूस होती है ना, तब आपको पानी की एक अहमियत समझ आती है। अदरवाइज हम लोग पानी को तो भाव ही नहीं देते, है ना? यस तो मैम। इन दैट केस वही एग्जांपल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टू द पॉइंट। या So, concept of maximum social advantage. On the other hand, when government impose taxes, it results to sacrifice of this utility. अगर आप लोग देख रहे हो कि हम लोग फेस कर रहे हैं कि कोई भी मनी जो है प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, या फिर there is some problem with the utilization of money, or they're not doing it properly, and that money paid as tax by the taxpayers, they are getting offended कि ये पैसा यहाँ क्यों यूज हो रहा है, and we don't want this to happen. So like that, अगर कुछ problem हो जाए, then we need to take care of it. So in that case, again, social advantage, we told you that public finance deals with social advantage, and here we might take care of the social welfares. People around us should, they should be given the priority and importance. Moving on to the principles. अब इतना अच्छा point है, तो इसके principles भी काफी अच्छे ही होंगे। क्या है principles इनका? First one is all expenditure by government creates benefits, whereas taxes imposed by government leads to sacrificing. Expenditure जो government करता है, it creates a lot of benefits. लेकिन जो taxes impose होती है by government leads to sacrificing. Government has no source of income other than taxation. मतलब ये I don't agree with this point. Uh, Somehow I just feel that this point might lead you to a problem. So don't write this point, huh? Don't write this point. ओके। I feel that this is a little not on the safer side. So government, because there are many sources other than taxation, not only taxation, but many others of public debt is there, monetary policy, fiscal policy. Many policies are there from where we can earn money. The government has a balanced budget, which means there is no surplus or deficit of funds. Uh, Obviously, which I told you that government believes in uh, deficit budget more than surplus budget, that we discussed in the point above as well. यस And मैम। marginal social benefit creates public expenditure, keeps on diminishing as these are incurred on the basis of law of diminishing marginality. What is law of diminishing marginality? I hope you're not aware because you are from a science background. I'll just send you a message. You just text me hi once. I'll just send you the यस 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 message of मैम। this diminishing marginality. जस्ट वन सेकंड। वेट हियर, यहाँ पे चैट में। Hmm? You saying something? आई एम जस्ट आस्किंग कि यहीं पे मैम क्या बोलते हैं, वेट वेट, हाँ आई गॉट। कुछ चैट दिख रही है क्या? कुछ तो नहीं आया मेरे को।
मैं देख लेता हूँ, just लगाओ this। मैम वेन्स मतलब Which one? WANES, veins means fades away। हाँ, veins में fade away, but कहाँ लिखा हुआ है? वो आपने जो टेक्स्ट भेजा उसमें। ओके ओके, मैं पढ़ ली थी एक बार। Oh, हाँ हाँ, the product veins means just goes off from the market. That's the key of veins. यस मैम, ये पढ़ लिया। Yeah. With you, the time went very fast. We didn't realize it's almost 1 hour 15 minutes. Okay. So the marginal social benefit created due to public expenditures, due to diminishing marginal utility. Now you know what is diminishing marginal utility, and taxes are subject to increasing marginal social sacrifice. Like I told you कि हम लोगों से ही पैसा लेके हम लोगों को ही दिया जा रहा है, so it is basically a marginal social sacrifice. हम लोग खुद कर रहे हैं and we are getting the benefit of it. Like होता है ना कि आपने बहुत लोग खुश हो जाते हैं, है ना, कि आपके पॉकेट में पैसा मिल गया। सपोज आपको 2-3 महीने बाद आपके कोई जीन्स में पॉकेट में पैसा मिल हाँ गया, हाँ तो आप खुश हो जाते हो कि अरे वाह पैसा मिल गया, बट अल्टीमेटली ये पैसा आपका ही था, हाँ। यस मैम। है ना। तो खुश होने की क्या बात है? है ना, आपका पैसा आपको मिला। हाँ, अगर किसी और का आपको मिलता तो खुश होने वाली बात होती, है ना। यस ओके, मैम। सो लिमिटेशंस ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, ये तो इम्प्रैक्टिकेबिलिटी ज्यादा है इसमें। जैसे मैंने कहा कि देखो यहाँ पे ये लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का नो मतलब और कोई सोर्स ही नहीं है टैक्सेशन का, बट ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, सो ये प्रैक्टिकल नहीं है। अनरियलिस्टिक assumptions है, ये लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू को छोड़ देते हैं, बट नो, यू शुड कंसिडर नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे मैंने कहा कि ओनली टैक्सेशन पे फोकस कर रहे हैं ये लोग, विच इज नॉट करेक्ट। एंड ये अनरियलिस्टिक अगेन, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है इसमें, मिसयूज होते हैं गवर्नमेंट के फंड के। एंड लार्जर बजट साइज, इन लोगों का बजट भी काफी हाई होता है, एंड ऑब्वियसली बजट अगर आप ज्यादा रख रहे हो ना, तो आपके खर्चे भी ज्यादा ही होते जाएंगे। अगर आप हाँ थोड़ा हाँ सा हाथ बचा करके चलोगे तो आपके पैसे आपके हाथ में रहेंगे, लेकिन आप बढ़ाते रहोगे बजट तो फिर तो आप दुकान में जाके बोल रहे हो मेरे को एक अच्छा सा चीज दिखाओ। अच्छा सा मतलब क्या होता है? आप दाम बोलो, तो वो अच्छा सा बेस्ट दिखाओ। आप जब बोल दोगे ना कि बेस्ट दिखाओ, तो वो तो फिर 100 का सामान भी 500 ही बोलेगा। हाँ हाँ। अब हम लोग आ रहे हैं व्हाट में मार्केट फेलियर। अच्छा, एक मिनट, कितना पॉइंट्स बाकी है? 5 6 7 8। अरे बड़ा है, 15 है। ठीक है, आज 50% कर लेते हैं, नेक्स्ट डे और 50%। मैम ये तो पूरा शायद पब्लिक फाइनेंस का पूरा पीडीएफ है ना? हम्म। टाइम लगेगा एक्चुअली, नया है ना आपके लिए, तो मैं फटाफट नहीं कर सकती, आई नीड टू मेक सम टाइम। आपके लिए नया है तो मतलब यू नीड टू नो इट इन डिटेल ना। बार बार आप तो ये चैप्टर मतलब बार बार तो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे ना आप, तो यस आपको मैम। तो डिटेल में पढ़ना है ना। वी डोंट वांट कि आप बार बार पढ़ो। अब हम चाहते हैं कि आपका एग्जाम एक बार क्लियर हो जाए, यस मैम। है ना। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? अच्छा, डू यू हैव एनी पेंडिंग एग्जाम्स फ्रॉम सेमेस्टर 4? रिजल्ट आ गया ना? हाँ हाँ, वो पास, सब में पास। थैंक गॉड। यस थैंक गॉड। कोई कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तो फिर बाद वही। में ना प्रॉब्लम हो जाती है। यस मैम, फोर्थ सेमेस्टर 6 में सेमेस्टर फिफ्थ टेंशन हो जाएगा। सेमेस्टर सिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पीछे के तो क्लियर हो हम्म। जाती है। मतलब फिफ्थ तक ठीक है, फिफ्थ तक कब से मतलब फोर्थ के बाद आप ये बैकलॉग लेने का चांस नहीं ले सकते। यस मैम। फोर्थ के बाद आपको बस करना है, मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन, नहीं तो आपका टाइम डिले हो जाएगा ना। हाँ हाँ, वो तो है। आ रहा है कि कुछ तो करेक्टली नहीं हुआ है और कुछ तो कहीं रॉन्ग हो चुका है। तो मार्केट फेलियर इज एन इकोनॉमिक टर्म
describes the condition of insufficient circulation of services and goods within the free market. मतलब correctly जो आपने जो assume करा था वैसे काम नहीं हो रहा है या फिर काम में थोड़ा सा गड़बड़ी किधर किधर हो रहा है. This occurs when individuals make rational self-interest decisions and that are not beneficial for the free market system as collective. So in that case, ये जो decision आपने लिया है ये correctly नहीं जा रहा है and there is some problem with this free market and free market system में क्या होता है ना, there is no particular price, too much flexibility, कोई time foundation नहीं होता है, free entry in the market. So इतने सारे points को देखते हुए क्या हो जाता है ना कि आपने दो competition रखा है, टाटा and बाटा. Suppose someone Sata has come. So in that case, three companies are competing amongst themselves. But again, obviously आप बोलोगे मैम टाटा is the best. So obviously यहाँ पे कोई कंपैरिजन का पॉइंट ही नहीं आता. बट लेकिन जस्ट आई एम गिविंग XYZ का एग्जांपल. तो तीनों कंपनी, दो कंपनी लड़ रहे थे और एक कंपनी आ गया. तो क्या हो गया ना, दोनों कंपनी के बीच में और एक कंपनी आ जाएगा तो प्रॉफिट तीनों में बढ़ जाएगी क्योंकि कस्टमर्स तीनों में डिवाइड हो जाएंगे. Where हो जाएंगे इसमें? So when it happens, the supplied quantity of goods and services does not match the quantity that is in demand. मतलब आपके पास अब तीन कंपनी है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी. तीन XYZ कंपनी है तो सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया क्योंकि तीनों कंपनी मिलके बना रहे हैं ना. Yes, तो इन दैट के सप्लाई बहुत ज्यादा है बट डिमांड उतना नहीं है ना, क्योंकि डिमांड तो टूट जा रही है. डिमांड टूट जा रही है तीनों दुकान में. सपोज टोटल कस्टमर है 100 और आपने ना आपने भी 100 बनाया, मैंने भी 100 बनाया और एक किसी ने और ने भी, और एक स्टूडेंट जो है उसने भी 100 बनाया है प्रोडक्ट. ठीक है, तो तीनों ने हम लोग दुकान डाली है और दुकान में हम लोग सब लोग 100 बेच रहे हैं, मतलब बना के रखे हैं. अब कस्टमर तो 100 की 100 आपके दुकान ही आने वाली, ना मेरे आने वाली है और ना और एक स्टूडेंट की आने वाली है ना. yes, तो ma'am. कस्टमर तो बढ़ जाएगी, 20 30 50 में बढ़ गई. सपोज हाँ, आपके में 50 आ गई, मेरे में 20 आ गई और एक स्टूडेंट में 30 आ गई. तो इन दैट केस क्या हो गया, आपका सेल सबसे ज्यादा हो गया yes, ma'am. और मेरा सबसे कम हो गया. तो मैंने बनाया था 100 पीस लेकिन मेरे कितने पड़े हुए हैं, 80 पीस पड़े हुए हैं. Yes, ma'am. आपने बनाया था 100 पीस, आपका 50 सेल हो गया. कितना पड़े हुए हैं, 50 पड़े हुए हैं. और एक जो स्टूडेंट है उन्होंने 70 उनके पास पड़े हुए हैं. तो ये जो प्रोडक्ट, मतलब मैंने अभी क्या बताया कि सप्लाई काफी ज्यादा हो जाती है और डिमांड कम है ना. तो Yes, इसके वजह से मार्केट फेलियर होता है. ओके, बात आई समझ में. yes, ma'am. Yes, हम्म, totally. तो ये तो हो गया, बहुत ही इजी से मैंने समझा दिया. इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ मार्केट फेलियर दो टाइप के होते हैं. एक है कंप्लीट मार्केट फेलियर, जब मार्केट में बहुत ही अफरा तोड़ प्रॉब्लम आ चुकी है. सो मार्केट डज नॉट सप्लाई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एट ऑल. मतलब ये नहीं कि डिसकंटिन्यू कर दिया बट मार्केट में वो प्रोडक्ट बन नहीं रही है. ठीक है. Yes, ma'am. हाँ. नेक्स्ट पार्शियल मार्केट फेलियर, जब मार्केट में कुछ ना कुछ छोटी मोटी हो लेकिन प्रॉब्लम आई है, उसकी वजह से ओवरऑल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है. सर कीप इट टिल हियर कि 45 से मेरा फिर और एक क्लास स्टार्ट होने वाला है. सो Yes, इफ यू हैव एनी डाउट मेरे को पूछ लो फटाफट. I'll just resume this class next day. I'll tell you which day it is. Okay. yes, ma'am. Totally. अच्छा, आपको TTS में प्रॉब्लम होगा क्या? If I take classes on TTS, Tuesdays, Thursdays and Saturdays. No, ma'am. कोई issue नहीं है. Okay, then I'll just try to fix your classes of public taxation on TTS. Yes, ठीक है. ma'am. Totally. Yes, If the link is free, again a problem. If the link is free, I'll have a word with sir कि अगर कैसे क्या हो सकता है. और मैम ये डायरेक्ट टैक्सेशन भी आप ही लेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, दोनों मैं ही लूंगी ना. Okay. You'd like the class? You understood everything? Yeah, ma'am. Totally, I did. Okay, thank you. Thank See you. you next class. Bye. Yeah, Say bye. bye. Thank you. Yeah.